Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Welcome, dear friends, to the presence of the living God. मेरे प्रिय मित्रों, जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. God wants to make you a fragrance. परमेश्वर आपको एक खुशबू बनाना चाहता है. He is the lily of the valley and the rose of Sharon. वह तो वादी का सोसन और शारोन का गुलाब है. And when He is in us, His fragrance comes out of us. और जब वो हम में हो तो उसकी खुशबू हमसे बाहर निकलती है. And I want to bring to you a message that I preached about how the fragrance of Christ comes and surrounds us. और मैं एक संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ जिसमें मैंने बताया कि कैसे उसकी खुशबू आकर के हमारे चारों ओर फैल जाती है. Let's listen to it. आइए हम उसे सुनकर आशीष प्राप्त करें. This morning the Lord asked me to give you the promise found in Genesis 12 and verse 2. आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपको उत्पत्ति 12 वचन 2 में दिए गए उस प्रतिज्ञा के बारे में बताऊं. Here God says, यहाँ परमेश्वर कहता है, I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. The Lord says, प्रभु कहता है, you will be a blessing. आप एक आशीष का कारण होंगे. Every one of you will be a blessing. आप में से हर एक आशीष बनेंगे. And He will make your name great आपके नाम को महान करेगा and He will bless you. और वह आपको आशीष देगा. This is God's promise for you. आपके लिए परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है. Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल न हो. Why does He make you a blessing? आपको वह क्यों एक आशीष बनाता है? And how has this blessing come upon you? और ये जो आशीष है ये कैसे आपके ऊपर में आती If है? you read John chapter 12 and verse 3, अगर आप यूहन्ना 12 वचन 3 को पढ़ें the same you read in Luke और 7:38 यही वचन आप लूका 7:38 में पढ़ते हैं and Mark 14 reading from verse 1. और मरकुस 14 में वचन 1 से आगे भी पढ़ते हैं. As Jesus was invited to a home for a feast, जब यीशु मसीह को एक घर में भोज के लिए बुलाया गया या आमंत्रित किया गया there was a rich Pharisee who invited him. तो एक धनी फरीसी था जिसने उसको आमंत्रण दिया था. He was following all the rituals of the law. और वो जो था व्यवस्था की हर एक बातों का पालन करता था. And the disciples of Jesus were around Jesus having the feast. और प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के चारों ओर बैठ करके भोज का आनंद ले रहे The थे. disciples of Jesus were all enjoying the feast. प्रभु यीशु मसीह के चेले सब भोज का आनंद ले रहे थे. But there was one lady who came behind Jesus. लेकिन एक स्त्री थी जो यीशु के पीछे आई. One ordinary lady. एक सामान्य औरत. When she came in, जब वो अंदर आई everybody's eyes went up. हर एक की आंखें जो थी उठ गईं. And the man who invited Jesus, the Pharisee who was following all the rules of the law, great religious person, said, "This lady is a sinner." और वो फरीसी जिसने यीशु को बुलाया था और जो कि यहूदी धर्म के हर एक नियमों का पालन करता था उसने कहा ये स्त्री तो एक पापनी है. But it was that lady लेकिन यही स्त्री थी who came and shed tears at the feet of Jesus. जिसने आकर के यीशु के कदमों पर आंसू बहाए. Her tears fell upon the feet of Jesus. उसके आंसू यीशु के कदमों पर गिरने लगे And it wet his feet. और उसके पांवों को उसने गीला कर दिया. It cleaned his feet. उसके पांवों को उसने साफ कर दिया. Then she poured a costly ointment on his feet. उसके बाद उसके पांवों पर उसने बड़ा ही कीमती इत्र मला. She anointed his feet. उसने उसके पांवों का अभिषेक किया. Of course, the fragrance of that balm, the ointment spread all over the house. निश्चय ही उस इत्र की जो खुशबू थी वो पूरे घर के अंदर में फैल गई.
As the fragrance went all over the house, और जब वो खुशबू पूरे घर के अंदर फैलती चली गई, and as this Pharisee was seeing this lady kissing his feet, और जब इस फरीसी ने देखा कि यह स्त्री यीशु के पांवों को चूम रही है, he said, "This is a sinner." उसने कहा ये एक पापिनी है। Does he not know she is a sinner? क्या यीशु नहीं जानता वो एक पापिनी है? Jesus is allowing her to kiss his feet. और यीशु जो है अपने पांवों को चुंबन देने के लिए उस स्त्री को मौका दे रहा But है। then the disciples, लेकिन जो चेले थे what did they say? उनने क्या कहा? Why waste this costly ointment on Jesus? हम इस बहुमूल्य इत्र को क्यों यीशु के ऊपर यूं ही व्यर्थ जाने दें? They were criticizing her for the money she spent on Jesus. और वे उस स्त्री के लिए नुक्ताचीनी कर रहे थे उस पैसे के लिए जो उसने यीशु के पीछे बहाया। They said this could have been given to the poor. उन्होंने कहा कि यह तो गरीबों को दिया जा सकता था। Why this money, so much money, all her savings have been given to Jesus? इस स्त्री की सारी जो कमाई थी उसकी जो बचत थी क्यों वो सब यीशु के पीछे यूं ही व्यर्थ बर्बाद की गई? One side, the Pharisee was criticizing her, saying she's a sinner. एक तरफ फरीसी जो थे वो निंदा कर रहे थे कि वो एक पापिनी है। On the other side, the disciples were criticizing her for the money she gave to Jesus, for the offering she gave to Jesus. और दूसरी ओर जो चेले थे वो उस स्त्री की निंदा कर रहे थे उस दान के कारण से जो उसने यीशु के पीछे बहाया। They criticized her for honoring Jesus with all that she had. उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ यीशु का आदर करने के लिए वो उसकी निंदा कर रहे थे। That is the world. यही है संसार। Maybe today the world is saying the same thing about हो you. सकता है आज संसार जो है आपके बारे में यही कह रहा है। The world may be criticizing you. यह संसार आपकी निंदा कर रहा होगा। People who say, I'm a great religious person. लोग जो कहते हैं मैं बड़ा धर्मी व्यक्ति हूँ, I'm a great scholar of the scriptures. मैं तो शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता हूँ, विद्वान हूँ। But when they look at you, they may be saying, oh, this is an ordinary man who knows nothing about God. लेकिन जब वो आपको देखें तो शायद वो कहते हैं ये तो एक सामान्य व्यक्ति है जो यीशु के या ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता। They may even be saying, you are a sinner. शायद वे ये भी कहते होंगे कि आप एक पापी हैं। On the other side, दूसरी ओर there may be people criticizing you, saying you are giving everything to Jesus, everything to his ministry. लोग जो हैं आपकी यह कहकर भी निंदा करते होंगे कि आप यीशु के लिए सब कुछ दे रहे, उसकी सेवकाई के लिए दे रहे हैं। And the Bible says, बाइबल कहती है Judas was saying that. यहूदा जो था यही कह रहा था। Who is that Judas? ये यहूदा कौन है? The finance man for Jesus Christ. वो यीशु मसीह के लिए खजांची था। And the Bible says he was a thief himself, and he was taking the money from the purse of Jesus Christ, stealing it for himself. और बाइबल कहती है कि वो तो चोर था, वो यीशु मसीह के बटवे से जो कुछ धन यीशु के पास आता था स्वयं उसमें से चुरा रहा था। Only he was criticizing this woman for spending all the money on Jesus without giving the money to him so that he could steal it. और वही था जो इस स्त्री की निंदा कर रहा था कि उसने वो पैसे नहीं दिए लेकिन उसे यीशु पर खर्च कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे मिलता और उसे चुरा लेता। In the world we see such people. संसार में हम ऐसे ही लोग देखते हैं, People who are stealing the money. लोग जो पैसे चुरा रहे हैं। They will never like people giving their offerings to Jesus. वे कभी नहीं चाहते कि लोग जो हैं यीशु के लिए अपने दान दें। But what did this woman do? लेकिन इस स्त्री ने क्या किया? She never looked at the Pharisee. उसने कभी भी फरीसी को नहीं देखा। She never looked at these critical people who were after money. ये लोग जो पैसों के पीछे थे उन निंदकों को उसने नहीं देखा। She looked at the feet of Jesus. उसने केवल यीशु के चरणों पर आंखें रखी। She held on to the feet of Jesus. वो यीशु के पांवों को थामी रही। The more they criticized her, जितना ज्यादा उनने उसकी निंदा की, the more they humiliated her, जितना उसको और बेइज्जत किया उनने, the more they unnecessarily accused her, saying you're a sinner, though she repented from her sins and became the child of God. वे नाहक ही उसकी निंदा कर रहे थे कि वो एक पापिनी है जबकि वो पश्चाताप कर चुकी थी और परमेश्वर की एक संतान बन चुकी थी। She never stood up to argue with those people. उन लोगों से विवाद करने के लिए वो कभी भी नहीं उठी। She went on kissing the feet of Jesus वो Christ. तो बस यीशु के कदमों को चूमती और चूमती रही। Went on crying and thanking Jesus for saving her from her sins. वो रोती रही और यीशु का धन्यवाद करती रही कि उसने उसे पापों से बचाया। Washed his feet. उसके पांवों को उसने धोया Anointed his feet. और उसके पांवों का अभिषेक किया। Anointed his feet उसके पांवों का अभिषेक with किया the
costliest perfume, सबसे कीमती इत्र से, costliest ointment. सबसे कीमती इत्र से। Yes, the Lord told me हाँ, प्रभु ने मुझसे कहा that you have also done that. कि आपने भी बिल्कुल यही किया है। This ministry has done that. इस सेवकाई ने यह किया है। You have never looked at any man who has been speaking so many things. आपने कभी भी उस व्यक्ति को नहीं देखा जो अनेक बातें कर रहे थे। Never looked at the world. आपने कभी संसार को नहीं देखा, Never looked for worldly recognition. कभी भी संसार की पहचान की ओर नहीं चाहा। In the midst of all the opposition and criticism, you have held on to the feet of Jesus Christ. हर प्रकार के विरोध और निंदा के बावजूद आप यीशु को थामे रहे हैं। You have said that his feet is enough for me. आपने कहा उसका पांव मेरे लिए पर्याप्त है, And you have been grateful to Jesus. और आप यीशु के लिए कृतज्ञ रहे हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this lady has honored me इस स्त्री ने मेरा आदर किया है by putting the perfume ointment on my feet. मेरे पांव पर इत्र मल करके उसने मेरा आदर किया है। Because very soon they are going to put nails on my feet on the cross. क्योंकि शीघ्र ही वे मेरे पांव पर अब क्रूस पर कील जड़ेंगे। At that time nobody will be there to put an ointment on the wounds that I would suffer on the cross. और उस समय कोई भी नहीं होगा जो जख्म मैं क्रूस पर उठाऊंगा उस पर कोई इत्र मले। I'd be suffering with pain on the cross as I bring salvation and redemption to all human beings. जब सारे मानव जाति के लिए मैं छुटकारा और उद्धार लेकर के आऊंगा तो मैं क्रूस पर दुख उठा रहा होऊंगा। There'll be no human being who would put an ointment on my wounds and heal my suffering. तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो उस समय मेरे दुखों के ऊपर, मेरे घावों के ऊपर किसी प्रकार का इत्र मले। But this lady, लेकिन इस स्त्री ने, this woman, ये महिला, this my daughter ये मेरी प्रिय बेटी has put an ointment on my feet today इसने आज मेरे पांव पर इत्र मला है to heal my wounds, कि मेरे घावों को चंगा करे, to heal my wounds on the कि cross. क्रूस पर मेरे घावों को चंगा करे। Now I can go to the अब cross. मैं क्रूस पर जा सकता हूँ, I can have the wounds in my body. मेरे शरीरों पर घाव उठा सकता हूँ। This woman has already put the balm on my wounds where I am going to have the wounds, so none of the wounds will hurt me. इसलिए क्योंकि उन जगहों पर जहां मैं जख्म उठाने वाला हूँ, घाव होने वाले हैं, उसने पहले ही मलहम लगा दिया है, अब मुझे कोई भी चोट न होगी। That's why the Bible says in Isaiah 53, इसलिए यशायाह 53 में बाइबल कहती है, Jesus never opened his mouth when they nailed him to the cross. जब उनने यीशु को कीलों से जड़ा तो यीशु ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। He could bear all the pain वो सारा दर्द सह सका because of the love of this lady. इस महिला के प्रेम के कारण से, Because she had put ointment of love upon him. क्योंकि उसने यीशु के ऊपर प्रेम का मलहम रखा था। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, as you are living a righteous life, जब आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, as you are grateful to Jesus, जब आप यीशु के प्रति कृतज्ञ हैं, as you go on kissing his feet and thanking him in the midst of all the opposition of the world, जब आप उसके पांव को चूमते रहते और संसार के हर एक विरोध के बावजूद आप उसका धन्यवाद करते हैं, you are pouring a costly ointment on the wounds of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के जख्मों के ऊपर बड़ा कीमती इत्र मल रहे Even हैं। today, Jesus Christ has wounds in his body. आज भी यीशु के शरीर में घाव हैं, His hands have been wounded by the nails. उसके हाथों को कीलों से जख्मी किया गया, His legs have wounds. उसके पांव में जख्म है, His side has wounds. उसके पांजर में जख्म है, I'm sure even his head would have wounds. और मुझे निश्चय उसके सिर में भी जख्म होंगे। He showed his wounds to his disciples even after resurrection. अपने पुनरुत्थान के बाद भी उसने अपने चेलों को जख्म And दिखाया, those wounds are alive. और वो जख्म जीवित हैं, Because it is only through those wounds he heals us from our sicknesses today. क्योंकि उन्हीं जख्मों के द्वारा से आज भी वो हमारी बीमारी से हमें चंगा करता है। According to Isaiah 53:5 जैसा यशायाह 53:5 कहता है, and 1 Peter 2 and verse 24. और पहला पत्रस 2 और वचन 24 कहता है, It is your ointment of sacrifice, your ointment of love, which is healing the wounds of Jesus even today. ये आपका मलहम है, आपके प्रेम का, आपके त्याग का मलहम है, जो कि आज यीशु के जख्मों को चंगा कर रहा, उन्हें भर रहा है। As you live a righteous life, जब आप एक धर्मी जीवन जीते हैं, as you come together to worship Him and thank Him for shedding His blood for you, जब आप उसकी आराधना करने आते हैं, उसका धन्यवाद करने आते हैं कि उसने आपके लिए अपना लहू बहाया, as you partake of His
blood and his body in faith through the Holy Communion. जब आप विश्वास के द्वारा प्रभु भोज में उसके शरीर और उसके लहू को ग्रहण करते हैं, And after that, go back and live a holy life, a righteous and sacrificial life in the world. और उसके बाद जा करके संसार में आप एक पवित्र और एक त्याग में जीवन जीते हैं। You are wiping away the wounds of Jesus and healing it with your ointment of love. आप प्रभु यीशु मसीह के घावों को धो रहे हैं, अपने प्रेम के उस मरहम से आप उसे चंगा कर रहे हैं। My friends, we want to pray for you right now. मेरे मित्रों, हम इसी समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। You have humbled yourself to the dust and loved Jesus. आपने धूलि की तरह अपने आप को दीन करके यीशु से प्रेम किया है। You have not cared for anybody's remark. आपने किसी के भी कटाक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया है, And your life is a fragrance to Jesus. और आपका जीवन यीशु के लिए खुशबू की तरह है, And you have brought fragrance to surround Jesus. और यीशु को ढांपने के लिए आपने उस खुशबू को, सुगंध को लाया है। With the fragrance that you have adorned Jesus with, He is coming with you all the time for that fragrance to surround you and for the world to enjoy the fragrance through you. और जो सुगंध, जो खुशबू आप यीशु के लिए लेकर के आए हैं, वो स्वयं आप उससे ढांकने वाला है, ताकि आप संसार में उसकी खुशबू को फैलाने पाए। Yes, He will honor you. हाँ, वो आपका आदर करेगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, honor your daughter, अपनी बेटी का आदर करें, honor your son अपने बेटे का आदर करें, with your presence always. हमेशा अपनी उपस्थिति के साथ। Let them have fragrance in their life. उन्हें दे उनके जीवनों में आपकी खुशबू ले चले। वो Let everything of the world and every evil leave them right now. संसार की हर एक बातें, हर एक बुराई उन्हें इसी समय छोड़कर चली जाएं। Let honor come from you before the very people who brought them shame. ठीक उन्हीं लोगों के सामने जिनने उनका अपमान किया, आप उनके लिए आदर लेकर आए। Thank you. You will ask the devil never to touch them anymore. धन्यवाद, क्योंकि अब आप शैतान को यह आज्ञा देंगे कि वो आपके लोगों को कदापि भी न छुएं, You will cast out the wicked people. They will never see them again. और आप ऐसे दुष्टों को बाहर निकाल देंगे जिन्हें वे अब कभी भी आगे न देखेंगे। Your people will see only you, Lord. आपके लोग केवल आपको देखेंगे प्रभु। Let their eyes see Jesus. उनकी आंखें केवल यीशु को देखने पाएं। Always, हमेशा always हमेशा appear to them. आप उन्हें दर्शन दें, Let them see you always. और उन्हें दें कि वे हमेशा आपका दर्शन पाए प्रभु, Enjoy your fragrance. आपकी खुशबू का आनंद लेने पाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। साल 2013 में क्या होने वाला है? My precious friend, 2013 is going to be a year of great rejoicing. जी हाँ, परमेश्वर के इस प्रकाशन को आपके समक्ष ला रहे हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन। आज ही इसे मंगवाकर परमेश्वर की योजनाओं को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। इसे मंगवाने के लिए दान राशि आप इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001। मेरा नाम ट्रीजा बेलिंगम है। मैं एक्चुअली धनबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा हुआ। मैं झारखंड राज्य के रांची में बहुबदर चौक नामक जगह में रहता हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। और मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं थी सही से, क्योंकि मैं अदर कास्ट से था तो मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं था। 2004 में हम यीशु बुलाता का अटेंड किए थे मीटिंग बरगांव में, जब डॉक्टर दिनाकर अंकल आए थे उस समय। इसी बीच में ऐसा हुआ कि घर का बहुत प्रॉब्लम के चलते मैं एक लड़का से शादी की, आदिवासी लड़का से, और शादी करके मैं रांची आ गई। उसके बाद मेरा ट्रेजिडी लाइफ स्टार्ट हो गया मेरा। और उसके बाद फिर नौकरी भी नहीं था दोनों हस्बैंड वाइफ के पास, और नौकरी नहीं होने के कारण मेरा बहुत परेशानी मेरे साथ लाइफ में हुआ। उसके बाद 2009 में जब ब्रदर पॉल जब आए रांची, तब उस समय मीटिंग अटेंड की धुरवा में, और उसी समय में ईश्वर का आत्मा मुझे उसी ग्राउंड में टच किया और मुझे लगा कि सचमुच में यीशु बुलाता के द्वारा
बहुत परमेश्वर यहाँ काम करेगा। और उधर उसी ग्राउंड में परमेश्वर स्पर्श किया मुझे, और मुझे लगा कि सचमुच में यीशु बुलाता है कि एक प्रेयर टावर यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय ब्रदर पॉल अनाउंस किए कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेयर टावर में बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और बहुत रोई उस समय आंसू बहा करके बोली, प्रभु मेरे पास इतना धन तो नहीं कि मैं दे पाऊँगी, लेकिन 200 रुपया कम से कम महीना में यीशु बुलाता है प्रेयर टावर रांची के लिए मैं दूँगी। और उसके बाद 2009 से मेरा लाइफ मतलब कि थोड़ा सा ठीक हुआ, जब से मैं जुड़ी इसमें और पत्रिका मंगाना शुरू की। पत्रिका मेरे लिए पूरा विश्व का बेस्ट मैगजीन जीएस कॉल्स का पत्रिका है। 2008 में मैंने डॉक्टर पॉल को पत्र लिखा, और फिर मैं लिखी ब्रदर पॉल को। ब्रदर पॉल हमको लिखे कि सिस्टर अबाउट द इंक्वायरी अबाउट मिस्टर राजकिशोर, यू राइट द डिटेल्स। तब हम प्रार्थना करके आई लेट यू नो गॉड्स विश क्या है। तो फिर हम इनका डिटेल्स लिख के दिए, और फिर मेरा और इनका लेटर दोनों का लेटर मिल गया, सेम लेटर हो गया। तो फिर लास्ट ईयर 13 मई को हम लोग शादी की। हमने कोर्ट मैरिज किया, और आज मेरे पति के संग में बहुत खुश हूँ। आज दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, तो मैं बस मन में रखा कि अगर हमारा घर हो तो बहुत अच्छा होता। जब मेरे पास बहुत दिक्कत था, उस समय मुझे प्रेरणा हुआ कि दिल्ली प्रेयर टावर के लिए तुम पैसा भेजो। और उस समय पत्रिका में पढ़ी, जो परमेश्वर के घर को बनाए परमेश्वर के घर को बनाएगा। और ये वचन मेरे मतलब ये शब्द मुझे बहुत छुआ। और उसके बाद में बहुत घटी और कमी से 5000 रुपया मैं भेज पाई दिल्ली प्रेयर टावर के लिए। फिर मेरा सर्टिफिकेट रहा, मैं इतना उत्साहित होकर सबको दिखाई कि देखिए मैं बहुत घटी कमी से परमेश्वर के लिए 5000 रुपया भेजी। परमेश्वर उस समय मुझे घर के लिए प्रकाश किया। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर में ही प्रभु ने हमें बहुत सुंदर घर दिया। और आज मुझे 20 लाख का परमेश्वर ने घर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए। और अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें या अपने शहर के निकट यीशु बुलाता है के शाखा कार्यालय में संपर्क करें, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना ये दान राशि हमारे सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscalls.org द्वारा भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करेगा।